ایپیسوڈ 46۔ ربن کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے، ایک ایک لمحہ اس پر بھاری تھا، ہر طرف بندے دوڑا کر بھی کسی طور چین نہیں تھا۔ لطیف نان بائی کی طرف سے ملنے والی فاروق کے اغوا کی خبر اور اغوا کاروں میں پولیس کے ایک ٹاؤٹ کی شمولیت نے اس کی تشویش کو بہت بڑھا دیا تھا۔ اپنی طرف سے سارے اقدامات کر ڈالنے کے باوجود اسے اطمینان نہیں تھا۔ چنانچہ جب اور کچھ نہ سوجا تو الٹے قدموں دوبارہ اس ٹھکانے پر جا پہنچا جہاں انسپکٹر وکرم کو رکھا گیا تھا۔ شکم سیری کے بعد نیند سے محروم رکھا گیا انسپکٹر ربن کو اپنے سامنے پا کر بے پھر گیا اور مغلظات بکنے لگا۔ گالیوں کے ساتھ وہ ربن کو خوفناک انجام کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ ربن نے ایک آدھ منٹ تو اس کی بکواس سنی، پھر اتنا زوردار تھپڑ اس کے داہنے رخسار پر رسید کیا کہ اس کا منہ دوسری طرف گھوم گیا اور زبان یوں بند ہوئی جیسے کہیں سے سوئچ آف کر دیا گیا ہو۔ ربن نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے گھوم جانے والے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تو وکرم کی یہ حالت تھی کہ گال کا اندرونی حصہ پھٹ جانے کے باعث خون بہ رہا تھا۔ بہنے والے خون میں 2 دانتوں کے ٹوٹ جانے سے نکلنے والا خون بھی شامل تھا۔ منہ سے بہ کر نکلتا خون وکرم کے لباس پر ٹپک کر اسے داغدار کر رہا تھا۔ صرف ایک تھپڑ نے اس کی حالت ایسی بنا دی تھی جیسے اس پر بدترین تشدد کیا گیا ہو۔ یہی ربن کا کمال تھا۔ اول تو وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس کے آدمی ہی سارے معاملات دیکھ لیں، لیکن اگر اس کا کسی پر ہاتھ اٹھ جاتا تھا تو اس بندے کی خیریت مشکوک ہوتی تھی۔ اپنا شہزادہ کہاں ہے؟ پولیس نے اسے اغوا کروا کے کدھر رکھا ہے؟ وکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بے پناہ سخت لہجے میں دریافت کیا، لیکن وہ ابھی تک تھپڑ کے صدمے کے اثر میں تھا اور منہ میں جمع ہو جانے والا خون تھوک رہا تھا، اس لیے اس کا سوال سمجھ نہیں سکا۔ کدھر ہے اپنا بچہ؟ جواب نہ پا کر ربن کے اشتعال میں اضافہ ہوا اور اس نے مٹھی میں جکڑے وکرم کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے میں اتنا زور تھا کہ وکرم کے بالوں کے کئی گچھے ربن کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس بار وکرم کے ہونٹوں سے ایک بلند چیخ برآمد ہوئی۔ جلدی سے اپن کو فاروق کا پتہ بتا دے، ورنہ تیری چندیا پر ایک بال بھی نہیں رہے گا، ایسے ہی کھینچ کھینچ کر کھال سمیت تیرے پورے بال نکال لے گا۔ اپن کو نہیں پتا دادا، اپن لاسٹ ٹائم لونڈے کو کورٹ میں دیکھے تھے، اس کے بعد سے اپنے کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ وکرم ربن کے لہجے کی خوفناکی سے ڈر کر بولنے لگا۔ اپن کو تیری رام کہانیاں نہیں سننے کا ہے، بس اپنے کو اپنا بچہ چاہیے۔ ربن دیوانہ ہو رہا تھا۔ عالم دیوانگی میں اس نے وکرم کی ایک نہ سنی اور چاروں ہاتھ پیروں سے اس پر پل پڑا۔ وکرم اس وقت بندھا ہوا نہیں تھا، لیکن ربن کے تابڑ توڑ حملوں کے جواب میں اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ربن نے 2-3 منٹ کے اندر اندر اس کا بھرکس نکال کے رکھ دیا۔ وہاں موجود اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے روک پاتا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر وکرم اسی طرح پٹتا رہا تو اپنی جان سے چلا جائے گا۔ وہ ربن کو روکنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے کہ خود ربن نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ وکرم کی بے ہوشی اس کے ہاتھ روکنے کا سبب بنی۔ وہ آنکھوں کے ڈیلے پھیرے فرش پر کسی حقیر چوہے کی طرح پڑا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ ربن نے سر تیجے میں اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو حکم دیا۔ وہ تیزی سے وکرم کی طرف بڑھا، جبکہ دوسرے نے ربن کو بیٹھنے کے لیے پھرتی سے کرسی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پانی کا گلاس بھی تھمایا۔ ربن نے پانی پہ تو اس کے چہرے کے تاثرات میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اپنے کو نہیں لگتا دادا کہ اسے کوئی خبر ہے، ورنہ تمہارے سامنے جم نہیں سکتا تھا۔ پانی پیش کرنے والے نے اپنی رائے اس کے گوش گزار کی۔ ربن جواب میں کھنکارا بھر کر رہ گیا۔ ویسے اس نے خود بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ وکرم کو فاروق کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اسی اثنا میں بے ہوش وکرم کو ہوش میں لایا جا چکا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ تقریباً بند ہو گئی تھی، ہونٹوں پر سوجن آنے لگی تھی اور سر کے مختصر بال بھیگ کر پیشانی پر چپک گئے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے سانس لے رہا تھا۔ ربن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے اتنا قریب جا کھڑا ہوا کہ اس کے جوتے کی ٹو وکرم کے بائیں کان کو چھو رہی تھی۔ اپن کو کچھ خبر نہیں دادا، اپن بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہے کہ پولیس والوں نے فاروق استاد پہ ہاتھ نہیں ڈالا، تو تم بولو تو اپن اپنی ماں کی، اپنے بچوں کی سوگند کھا کر تمہیں وشواس دلاتا ہے۔ ربن کو اتنے قریب دیکھ کر وکرم خوفزدہ ہو گیا اور قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آخری بار سوچ لے وکرم، اگر بعد میں ثابت ہوا نا کہ فاروق کے غائب ہونے میں پولیس کا ہاتھ تھا تو اپن تیری پوری نسل کو مٹا دے گا۔ جو تمہارا من کرے وہ سزا دینا دادا، پر وشواس کرو اپن تم سے ایک دم سچ بول رہا ہے۔ مان لیتا اپن کہ تیرے کو فاروق کے بارے میں خبر نہیں، پر مجو کے بارے میں تو اچھی طرح جانتا ہے نا، بتا کس بل میں چھپا کر رکھا اسے۔ وہ پریشان تھا اور فاروق کے سوا اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ وکرم کو یہاں لائے جانے کا اصل مقصد نہ بھولا اور اس سے مجو کی بابت سوال کر ڈالا۔ اس کے سوال کے جواب میں وکرم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی کے نتیجے میں ربن کی ٹانگ چلی اور ایک زوردار ٹھوکر وکرم کی کنپٹی پر جا پڑی۔ یہ ٹھوکر بڑی جچی تلی تھی۔ اس نے وکرم کو بلبلانے پر مجبور ضرور کیا، لیکن اس کی شدت اتنی نہیں تھی کہ وکرم اپنے حواس کھو کر بے ہوش ہو جاتا۔ زبان نہیں کھولے گا تو اپن ٹھوکرے مار مار کر تیری کھوپڑی کھول دے گا۔ آج تک تو اپنی پھینکی ہڈی کھاتا رہا ہے، پر اب تجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ ربن دادا کی مار کھا کر بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ اپن تیرے کو مرنے نہیں دے گا، پر جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔
रब्बन ने एक ठोकर और उसकी कनपट्टी पर रसीद की। उस ठोकर ने विक्रम को पहले से भी ज्यादा बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया और उसका मोटा ताजा वजूद फर्श पर यूं मचलने तड़पने लगा जैसे ज़िबा किए जाने वाला जानवर जानकनी के आलम में तड़पता है। उसके हलक से किसी जानवर ही की तरह खड़खड़ाहट बरामद होने लगी। पानी पिलाओ इसे, रब्बन ने हुक्म दिया। फौरन ही विक्रम के मुंह में पानी डाला गया। पानी का बेशतर हिस्सा उसकी बाँचों से बह गया, लेकिन जो चंद कतरे हलक के अंदर गए उन्होंने भी काम दिखाया और विक्रम की खड़खड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। उसे दोबारा पानी पिलाया गया। इस बार उसने पानी पी लिया और उसकी हालत संभलती नजर आने लगी। रब्बन खामोश खड़ा उसका जायजा लेता रहा। जब विक्रम काफी हद तक संभल गया तो सर तहजे में बोला, अभी तूने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अपन तेरे को जीते जी नर्क की सैर करवा देगा। अच्छी तरह सोच ले, क्यों उस हराम के पिल्ले के लिए अपनी जिंदगी खराब करता है। वो ऐसा सुअर है कि अपने बाप का भी नहीं बन सकता, तो तू किस खेत की मूली है। अपने को क्षमा कर दो दादा, अपन सिर्फ ड्यूटी करा था। गोरे अफसर पर हाथ डाल के तुमने खुद सरकार को अपने पीछे लगा लिया था। सरकार बोली मुजरिम को फौरन पकड़ने का है। मज्जू ने अपन को टिप दे दिया कि इस काम में तुम्हारा हाथ है। अपने पर ऊपर वालों को जोर नहीं होता तो अपन इस लफड़े में कभी ना पड़ता, पर अपन अपनी नौकरी बचाने को तुम्हारे खिलाफ गया। जास्ती बात ना कर विक्रम, अपने को सब खबर है कि तेरे ऊपर कितना दबाव था और तू कितना अपनी तरक्की के लालच में अंधा हो रहा था। तू समझता था कि अपन को गोरे विलियम के केस में फंसाकर तू बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, पर अब ये सारी बातें जान दे। अभी तू सिर्फ अपने को यह बता कि मज्जू किधर है। उधर ही था वो जिधर अपन जाता था। विक्रम ने बिलाखिर अपनी जुबान खोल दी। उधर मतलब तेरी रखेल के मकान पर? उसके किए इंकशाफ पर अपन चौंका। हाँ उधर ही। उसको उधर छुपाने का यह फायदा था कि अपन वहां उससे मिलने भी जाता था तो किसी को शक नहीं पड़ता था और देखने वालों को यही लगता था कि अपन उधर चंदा से मिलने जाता है। उसने अपनी रखेल का नाम लिया तो रब्बन को भी उसकी चालाकी तस्लीम करनी पड़ी। वाकई उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसने मज्जू को ऐसी जगह रखा होगा। मानना पड़ेगा तेरे को विक्रम, तू साला एक नंबर का कमीना है। चल ठीक है, अभी तो उधर अपना मेहमान बनकर रहे, अपन उस दूसरे नाम के जाने को देखता है। अपन को जान दो दादा, अपन तुम्हें तुम्हारे काम का बात बता दिया। अब तुम अपने को यहाँ रोककर क्या करेगा? तुम अपने को जाने दो तो अपन बात यहीं खत्म कर देगा। किसी को नहीं बोलेगा कि तुमने अपने साथ क्या किया। रब्बन वहां से हटा तो पीछे से विक्रम उसे पुकार पुकार कर कहता रहा। रब्बन ने उसकी हर पुकार अनसुनी कर दी। उसे अब वहां से जाने की जल्दी थी। फारूक वाला मामला अपनी जगह, लेकिन वो मज्जू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मज्जू ने उसे बड़े नुकसानात से दो चार किया था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो सांप जैसा दुश्मन किस बिल में छुप कर बैठा है। अब बिल का पता मिल गया था तो जरूरी था कि फौरी उसे घेर लिया जाए। फारूक के सर पर लगने वाली कारी चोट, कम्मू का कत्ल और एक मौके पर अपने आदमियों को धोखे से घेर कर बुरी तरह जख्मी करने के मज्जू के जराइम उसे भूले नहीं थे। उसे मज्जू से उसके हर अमल का हिसाब लेना था, इसलिए जरूरी था कि उस पर फौरी तौर पर हाथ डाला जाए। वो वहां मौजूद अफराद में से एक को विक्रम के बारे में जल्दी जल्दी हिदायत देता वहां से रवाना होने ही वाला था कि रामू वहां पहुंच गया। उसका चेहरा पुरजोश था। अपने को मालूम था कि तुम इधर ही आए होगे, इसलिए अपन तुम्हें ढूंढने के वास्ते सीधा इधर ही चला आया। उधर वो सारे साले तुम्हारे लिए बड़े परेशान है, बड़ी खबर लेकर आए, इस वास्ते तुम्हें ढूंढते हैं। खबर तो अपन के पास भी बहुत बड़ी है, पर पहले तू बोल, फारूक का कुछ पता चला? हाँ दादा, सुनगुन मिली है। डबल रोटी वाले ने जिस बंदे का बोला था वो बंदा मिल गया। साला चढ़ाकर कोठों की तरफ ही जा रहा था कि धर दिया गया। नशे में उसने 2-4 थप्पड़ खाकर ही उगल दिया कि फारूक को उठाने का काम उसे भाटिया सेठ के मैनेजर ने दिया था। साला गुंडा मावाली है और जो हड्डी डाले उसका काम करने को तैयार हो जाता है। उसके साथी भी उसकी तरह किराए के पिट्ठू हैं। अपने आदमियों ने उससे उस गोदाम का पता भी मालूम कर लिया है जिधर उन्होंने फारूक उस्ताद को पहुंचाया था। सब उधर उस गोदाम के आसपास जमा भी हो गए हैं, पर भाटिया सेठ के तुम्हारे साथ मामला चलते हैं, इस वास्ते तुम्हारी इजाजत मिलने के इंतजार में है। रामू ने उसे सारी कथा मुख्तसरन सुना डाली। सारी बात सुनकर रब्बन समझ गया कि असल में ये बिमला भाटिया की कार्रवाई है। वो बड़े तहलका खेज मिजाज की औरत थी और अपनी नौयत का एक अलग ही किरदार थी। एक तरफ मुहज्जिब, मुखलिस, तालीम याफ्ता और दोस्ताना मिजाज की मालिक लगती थी, तो दूसरी तरफ अनापरस्त और मुंतकिम मिजाज थी। उसके मिजाज के दूसरे रुख की ये इंतहा थी कि उसने उस आदमी को जिससे उसने बाप की मुखालफत मोल लेकर मोहब्बत की शादी की थी, ये पता चल जाने पर कि वो उसके दौलत के लालच में उसकी जिंदगी में आया था, नहायत आसानी से कत्ल करवा दिया था। वो फारूक की मोहब्बत में मुब्तला हुई और चांदबानो को अपना रकीब जानकर उस पर कातलाना हमला करवा दिया था। चांदबानो के साथ की गई उस कार्रवाई पर बर अफरोख्ता होकर फारूक ने उसका सख्त एहतसाब किया था, जो लाजमन उस अमीरजादी को नागवार गुजरा और उसने इंतकाम की आग बुझाने के लिए फारूक को अगवा करवा लिया था। बिमला का जो किरदार अब तक रब्बन के सामने आया था वो ऐसा नहीं था कि वो फारूक के अगवा में उसके मुलविस होने के शक के बाद इत्मीनान से बैठ सकता। उसने फौरन रामू से कहा, भाड़ में गया भाटिया सेठ और उससे अपने मामला। अपने शहजादे के सामने अपन किसी चीज को अहमियत नहीं देता। अपने आदमियों से बोलो सेठ के गोदाम की ईंट से ईंट बजा दें और निकाल कर लाएं फारूक को वहां से। ठीक है दादा, जैसा तुम बोलो।
ایک اہم معاملہ اور ہے رامو، مجو کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس بل میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ وہ دونوں ساتھی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ربن نے رامو کو بتا دیا۔ کیا بولتے ہو دادا؟ اس کا مطلب ہے سالے وکرم نے زبان کھول دی؟ ہاں، سالہ ہجڑا ادھر وکرم کی رکھیل کے مکان پر ہی چھپا ہوا ہے، 4-6 بندے ادھر بھیج کر اس کو بھی منگوانا ہے۔ بہت ناک میں دم کر دیا اس سالے نے، اب اس حرامزادے کا قصہ بھی پاک ہو جائے تو اچھا ہے۔ اڈے پر پہنچتے ہی بندے تیار کیے گئے۔ رامو نے مجو کو پکڑنے کے لیے جانے والی ٹولی کی سربراہی سنبھالی، جبکہ ربن نے فاروق کی بازیابی کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ فاروق کے سیٹ کے گودام میں ہونے کی اطلاع سن کر اس کے آدمی پہلے ہی گودام کے آس پاس جمع ہو چکے تھے، اس لیے ربن کو مزید نفری اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ البتہ اب تک کسی پیش رفت کے انتظار میں جاگتے منو اور اکبر زبردستی اس کے ساتھ چل پڑے۔ ربن انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ چند ہی دنوں میں اکبر اور منو فاروق سے کتنی محبت کرنے لگے ہیں۔ محبت کرنے والوں کو محبوب کی مشکل دور کرنے کے لیے عمل کی اجازت نہ دینا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چنانچہ اس نے دونوں کے ساتھ چلنے پر زیادہ اعتراض نہ کیا۔ رات کے بالکل آخری پہر جب سارا شہر بے خبری کی نیند میں ڈوبا ہوا تھا، وہ لوگ بھاٹیا سیٹ کے گودام والے علاقے میں پہنچے تو سب سے پہلے وجے سے ٹکراؤ ہوا۔ کیا بولتا رہے تم؟ ربن نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے رپورٹ طلب کی۔ یہ سیٹ کا پٹسن کا گودام ہے دادا، ڈھاکے سے منگائی پٹسن ادھر دبا رکھا ہے سیٹ، گودام کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ربن کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جو اس بات کے غماز تھے کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ چوکیدار کدھر ہے؟ پہلے تو گودام کے آس پاس راؤنڈ مارا تھا، پر اب بہت دیری سے دروازہ بند کر کے اندر ہی ہے، لگتا ہے سو گیا سالا۔ وکرم نے اسے بتایا، پھر بے چینی سے بولا، کیا بولتے ہو دادا؟ دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں؟ نہیں رے، تھوڑا شانتی سے کام لینے کا، ابھی اپن آ کے جا کر دروازہ بجاتا ہے، چوکیدار کھولے گا تو اس سے نمٹ لے گا، تم لوگ آس پاس ہوشیاری سے رہنا، اپن اشارہ دے تو اندر گھسانا۔ اپن چلے تمہارے ساتھ؟ وجے کی بے چینی برقرار تھی۔ نہیں رے، جاستی آدمی دیکھ کر وہ بدک جائے گا، اپن بنا ہنگامے کے معاملہ نمٹا لینا چاہتے ہیں۔ ربن نے اسے انکار کر دیا۔ شہر کے اس علاقے میں رہائشی مکانات اتنے قریب نہیں تھے اور سیٹ کے گودام کے آس پاس بھی زیادہ تر گودام ہی بنے ہوئے تھے، اس لیے رات کے آخری پہر میں یہاں باقی شہر کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ربن اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے تاریکی میں چھوڑ کر اکیلا آگے بڑھا اور گودام کے لوہے کے دروازے کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ پل بھر کے لیے اندر کی سنگن لینے کے بعد اس نے لوہے کے بھاری کنڈے سے دروازے کو بجایا۔ اس نے کنڈا بہت زور سے نہیں کھٹکایا تھا، لیکن سناٹے میں خاصی آواز محسوس ہوئی اور اندر سویا چوکیدار فوراً جاگ گیا۔ ربن دستک دیتے زمین پر اس انداز میں بیٹھ گیا کہ اس کا سر اس کے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا اور منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھیں۔ اندر موجود چوکیدار نے دروازے کی درمیانی جھری سے جھانک کر دیکھا اور پھر حیرت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، کون ہو بھائی؟ اتنی رات کو ادھر کیا کرتے ہو؟ اپن ادھر پیچھے چاول کے گودام پر کام کرتا ہے، اپن کی طبیعت بہت خراب ہو رہی، اپن کی مدد کرو۔ ربن نے سر اٹھائے بغیر گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ چوکیدار احتیاط کا دامن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اس ٹائم پہ ادھر کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ ربن کے قریب پہنچ کر وہ تشویش سے بولتا اس پر جھکا۔ اسی لمحے ربن نے اپنی انگلیوں میں دبا چاقو سامنے کیا اور چوکیدار کی گردن سے لگا کر سیدھا کھڑا ہو کر غرایا، خبردار جو آواز نکالی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس کی غراہٹ میں ایسی کاٹ تھی کہ چوکیدار بیچارے کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ ربن اسے دھکیلتا ہوا گودام کے کھلے دروازے سے اندر لے گیا۔ اس لمحے وہ اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے وہ تاریکی سے نکلے اور دندناتے ہوئے گودام میں گھس گئے۔ پورے گودام کی تلاشی لو۔ ربن نے انہیں حکم دیا اور خود سہمے ہوئے چوکیدار کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ لوڈا کدری ہے جسے سیٹ کے گنڈے یہاں لائے تھے؟ اپنے کو نہیں معلوم۔ کیسے نہیں معلوم؟ اپنے پاس پکی خبر ہے کہ اس کو ادھر ہی لائے تھے۔ ربن نے چاقو کی نوک اس کی گردن میں چبھوئی۔ لائے تھے پر صرف گھنٹہ بھر کے لیے، پھر اس کے بعد کہاں لے گئے؟ یہ اپن کو نہیں معلوم۔ مہیش صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ آ کر اسے ادھر سے لے گئے تھے۔ مہیش کون؟ سیٹ کا مینیجر؟ ہاں وہی۔ ادھر کوئی نہیں ہے دادا، اپن لوگ نے سارا گودام الٹ ڈالا، پر فاروق استاد کا کوئی پتہ نہیں۔ جانی نے متوش لہجے میں اطلاع دی۔ وہ ادھر نہیں آ رہے، اسے ڈھونڈنے کو بھی تھوڑے ہاتھ پیر اور مارنے ہوں گے۔ اپن سمجھا نہیں دادا۔ ادھر ہی کھڑے کھڑے کیا سمجھے گا؟ سالا اپنے سب لوگوں کو ادھر سے نکلنے کا بول، بس تو وجے اور کمرو رک جاؤ، باقی لوگوں کو ادھر تھوڑا کام کرنے کا ہے۔ ربن اسے ہلکے سے جھاڑتے ہوئے حکم دیا تو وہ فوراً تعمیر کے لیے چل پڑا، جبکہ ربن دوبارہ چوکیدار کی طرف متوجہ ہوا۔ اپن کا بچہ ادھر سے نہیں ملا، پر اپن ایسی کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اپن جاتے ہوئے اس گودام کو آگ لگا کر جائے گا۔ تو بول کہ تیری چیتا کو بھی ادھر ہی جلا دیں کیا؟ اپنے کو چھما کر دو دادا، اپن ایک دم نردوش ہے، اپن کو تمہارے لفڑے کا کچھ خبر نہیں، اپن تو بس نوکر جاتی ہے۔
पहले तू ये बोल कि महेश किधर मिलेगा अपने को। महेश साहब उधर जोहू के इलाके में फ्लैट में रहता है, शादीशुदा, बाल बच्चों वाला आदमी है। रब्बन ने उससे तफसील मालूम करने के साथ साथ रमेश का पता मालूम किया, जो चौकीदार ने फर बता दिया। असल में महेश कभी कभार उससे अपने जाती काम भी करवा लेता था, इसलिए चौकीदार का उसके फ्लैट पर आना जाना था और उसे रब्बन को उसका पता समझाने में कोई दुश्वारी पेश न आई। तू अपने को बड़े काम की बातें बताए चौकीदार, इसलिए अपन तेरे को जिंदा छोड़े जा रहे हैं। पर याद रख, इधर से सीधा अपने घर जाने का है। किसी को मुखबरी करने का कोशिश की ना तो याद रखना, अपन का नाम रब्बन दादा है और रब्बन दादा से बैर लेकर कोई जास्ती देर बम्बई की जमीन पर सांस नहीं ले सकता। अपन वैसा करेगा दादा जैसा तुमने बोला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझ निर्दोष को मुक्ति दे दी। जिंदगी की नवीद पाकर चौकीदार खेल उठा और रब्बन का शुक्रिया अदा करके तेजी से वहां से रवाना हो गया। फूंक डालो रे सारे गोदाम को, रब्बन ने अपने आदमी को हुक्म दिया। वो सब पहले गम और गुस्से से भरे हुए थे। रब्बन का हुक्म पाते हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद जब रब्बन समेत वो सब वहां से रवाना हो रहे थे तो भाटिया का गोदाम शोलों की जद में था और फिजा में पटसन जलने की महक फैली हुई थी। रब्बन ने सीधे वहीं से जोहू के इलाके का रुख किया था। उसके साथी भी उसके हमरा थे। वो अपनी मंजिल तक पहुंचे तो सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। उनके जिस्मों को छूती ठंडी नम हवा समंदर की कुर्बत का एहसास दिला रही थी। वो सब बोझल दिलों और गुस्से की आग में जलते दिमागों के साथ महेश की रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। वो जिस इमारत में रहता था वो 4 मंजिला थी। उस 4 मंजिला इमारत में उसका फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। इमारत के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था, अलबत्ता वहां रखी कुर्सी के साथ टिका बड़ा सा डंडा देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो कुछ देर कबल ही किसी जरूरत के तहत वहां से उठकर गया है। रब्बन ने कमरों को एहतियातन बाहर ही छुपकर निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद जानी और विजय के साथ आहिस्तेगी से सीढ़ियां चढ़ गया। नीम तारीख सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 36 तक पहुंचने में उसे कोई दुश्वारी पेश न आई। फ्लैट के दरवाजे के ऊपर बरकी बल्ब रोशन था। बल्ब की रोशनी में वो अच्छी तरह देख सकते थे कि दरवाजे में ऑटोमेटिक अंग्रेजी ताला लगा हुआ है। ताले को देखकर रब्बन के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और उसने विजय को ताला खोलने का इशारा किया। विजय अपनी जेब से एक तार निकालकर ताले पर झुका। उसकी मशाक उंगलियों ने मिनटों में ताला खोल दिया। ताला खोलते उसने हैंडल दबाकर दरवाजे को धकेला। दरवाजा आसानी से बेआवाज खुल गया। वो तीनों दबे कदमों अंदर दाखिल हुए। फ्लैट में धुंधली से रोशनी फैली हुई थी और मकीन यकीनन बेखबर सोए हुए थे। ये 2 कमरों का फ्लैट था जिसका लॉन्च खासा कुशादा था। उस लॉन्च में ही कीमती सोफे और कालीन वगैरह डालकर उसे ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। रब्बन एक सोफे पर टिक गया जबकि जानी और विजय फ्लैट का जायजा लेने लगे। राइट वाला कमरा बच्चों का है। 2 बाबा लोग हैं 6 से 8 साल के। लेफ्ट के कमरे में महेश और उसकी पत्नी सो रहे हैं। उन चारों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। जानी ने रिपोर्ट पेश की। बच्चों को सोता रहने दे और महेश और उसकी पत्नी को उठाकर यहाँ ले आ। चंद लम्हों बाद वो दोनों मियाँ बीवी इस हाल में उसके सामने थे कि जानी और विजय के चाकू उनके पहलुओं से लगे हुए थे और वो शबखाबी के लिबास में हवास बाख्ता से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। दादा तुम? लाउंज में अभी तक रोशनियां नहीं जलाई गई थी और बस खिड़कियों से आती सुबह की धुंधली सी रोशनी मौजूद थी। इसलिए महेश को रब्बन को शनाख्त करने में जरा देर लगी। आखिर के असबाब में दिमाग पर नींद के असरात और उसकी हवास बाख्तगी भी शामिल थी। रब्बन भाटिया के लिए काम कर रहा था, इसलिए वो भाटिया के मैनेजर की हैसियत से उसको पहचानता था। क्यों, तू क्या समझता था कि अपन तेरे तक नहीं पहुंच सकता क्या? तो तुम बम्बई का दादा है, तुम्हारा जहां मन बोलेगा वहां जा सकता है, पर इधर मेरे पास इस टाइम क्या करने के लिए आया है? मैनेजर ने किसी हद तक खुद को संभाल लिया था, इसलिए लहजे से नागवारी का इजहार करते हुए बोला, तेरे को अपनी नींद खराब होने का बड़ा दुख है ना? और उधर जो अपने को पूरी रात एक पलक भी झपकने को नहीं मिला, उसका कुछ ख्याल नहीं किया तूने? तू क्या समझा था अपन तेरे तक नहीं पहुंच सकता? तू ऐसा समझा था तो तूने रब्बन को बहुत हल्के में लिया था रे। अपन ऐसा हल्का होता ना तो अड्डे की चौकी पे नहीं बैठता, उधर बाजार में तवायफों के लिए दलाली कर रहा होता। तुम क्या बोलते हो दादा, अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेश ने उसे तरह देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए वो रब्बन से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका था। ऐसा कर जानी, उधर कमरे में जो उसका बच्चा लोग सो रहा है ना, उसे उठाकर यहाँ ला। अपने मन को लगेगी तो इसकी अकल में खुद ही सब कुछ आ जाएगा। रब्बन का यह हुक्म सुनकर महेश से पहले उसकी बीवी ने रद्द-ए-अमल दिया और बिलबिलाकर बोली, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, उन मासूमों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम्हारा महेश से कोई लफड़ा है तो इसी से बात करो। अपन बोला ना, अपने मन को लगे तब पता चलता है। अभी अपन सिर्फ तेरे बच्चों का नाम लिया और तू ऐसे बिलबिला रही है। उधर अपन रात भर से अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है। बोल अपने पति से कि हमें हमारे बच्चे का पता बताए, वरना खुद पर भी सहने को तैयार हो जाए। रब्बन ने जहरखान लहजे में महेश की बीवी से कहा तो वो शौहर की तरफ मुतवज्जो हुई और सख्त लहजे में बोली, ये सब क्या है महेश? क्या आदमी क्या कह रहा है? इसके बच्चे के गायब होने में तुम्हारा क्या रोल है? तुम शांत रहो शिल्पा, मैं इससे बात करता हूँ। तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए।
शिल्पा का लहजा हिसियाने होने लगा। मैंने कहा ना तुम शांत रहो, मैं करता हूँ बात। महेश ने इस बार कदरे झंझलाहट के साथ बीवी को तसल्ली दी और खुद रब्बन की तरफ मुतवज्जो हुआ। अपने को धोखा देने की कोशिश नहीं करना महेश, अपन पक्की खबर पर इधर तेरे पास आया। सेठ का वो गोदाम जिधर से तूने फारूक का डिलीवरी लिया ना, अब तक जलकर भस्म हो चुका होगा। अभी अपने को अपना बच्चा नहीं मिला ना, तो अपन पूरे शहर को भी आग लगा सकता है, और शहर में सबसे पहले जलने वाला घर अब तेरा होगा। ठीक है दादा, मैं भी तुमको सब कुछ बताता हूँ, पर अब तुम और धमकियां देकर मेरी पत्नी को डराने की कोशिश मत करो। अपने को ऐसा कोई शौक नहीं अरे, पर तू अपन से झूठ बोला ना, तो अपन खाली खुली धमकी नहीं देगा, अमल भी करेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये तूने ठीक फैसला किया। अपनी पत्नी के साथ उधर सोफे पर जाकर बैठ, फिर बता के माजरा क्या है। उसे सच बोलने पर आमादा देखकर रब्बन ने भी नरमी का मुजाहरा किया। उसका इशारा पाकर विजय और जानी पीछे हट गए। पहलुओं से लगे चाकू दूर हटने पर दोनों मियां बीवी ने कदरे सुकून का सांस लिया और एक सोफे पर बैठ गए। अब बोल, किधर है अपना शहजादा? तुम विश्वास करो दादा, तो मुझे भी उसका पता मालूम नहीं है। मैंने बिमला मैडम के ऑर्डर पर उसे अगवा करवाया था। अगवा करने वालों में 2 किराए के आदमी थे और 2 सेठ के अपने बंदे। तुमको पता होगा, सेठ अपने काम निकलवाने के लिए ऐसे कई आदमी पाल कर रखता है। उन आदमी ने तुम्हारे लौंडे को अगवा करके गोदाम पहुंचाया और गोदाम से मैंने बिमला मैडम के हुक्म पर निकाल लिया। मैं जिस गाड़ी में उसे गोदाम से लाया वो बिमला मैडम की थी। मैं गाड़ी लेकर मैडम की बताई जगह पर पहुंचा तो उसने मुझे गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया और खुद गाड़ी में बैठकर उसे चलाती हुई वहां से आगे निकल गई। आगे वो किधर गई और क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तुम बोलो तो मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। महेश के लहजे में सच्चाई थी। रब्बा ने यह सब सुना तो उसके जबड़े भींच गए। वो समझ रहा था कि सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि अब भाटिया से बरह रास्त बात के बगैर कोई चारा नहीं है। सेठ को पता अपनी बेटी के इन करतूतों का? मुझे पक्का नहीं पता दादा, पर शायद पता ना हो। बेटी खुदसर है और अपनी चलाने की आदि भी, परंतु मैं उससे पूछ नहीं सकता था कि उसने सेठ से परमिशन ली है या नहीं। कुछ भी बोलो, आखिर का वो मालकिन है और सेठ के बाद सब उसी के कंट्रोल में होगा। ठीक है, अपन तेरे कहे हर शब्द को सच मान लेता है और तेरी और तेरे बच्चों की जाबख्शी करता है, पर याद रखना अगर बाद में तू कहीं छोटा साबित हुआ ना तो अपने हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि तेरी गर्दन तक पहुंच ना सके। मैंने एक एक शब्द सच बोला दादा, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर झूठ कैसे बोल सकता हूँ। इस बार अपन कुछ न बोला और जानी और विजय को वहां से चलने का इशारा किया। वो दोनों खामोशी से उसके पीछे चल पड़े। रात भर की ख्वारी के बावजूद फारूक के ना मिल सकने पर वो दोनों भी अपनी अपनी जगह उदास और दुखी थे, लेकिन रब्बन का ख्याल करके उन्होंने जुबान से इजहार नहीं किया। वो तीनों नीचे पहुंचे तो गेट पर चौकीदार था। 3 अजनबियों की इमारत से बरामद होने पर वो थोड़ा सा हैरान हुआ। ए, किधर से आ रहे हो तुम लोग? तू अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा ना तो तुझे पता चलेगा इधर कौन आता और कौन जाता है। चल हट अब रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। विजय ने उसे धमकाया। ऐसे कैसे हट जाए अपन? अभी तुमको बताना होगा कि तुम किधर गया था। उसी वक्त रब्बा ने विजय को शांत रहने का इशारा किया और खुद नरमी से बोला, अपन उधर ऊपर महेश बाबू के पास काम से आया था, तुमको पूछना है तो पूछ लो उसको। तो ऐसे बोलो ना। चौकीदार फौरन पीछे हट गया। वो बाहर निकले तो कमरू उनका मुंतजिर था। उसने सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखा तो विजय धीमी आवाज में उसे सूरत हाल से आगाह करने लगा। अब वो मुंतजिर थे कि रब्बन क्या फैसला करता है। रब्बन ने वापस अट्टे जाने का हुक्म सुनाया। उस वक्त तक अगरचे सुबह की रोशनी अच्छी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उसके इल्म में था कि बीमार सेठ भाटिया सुबह 9 बजे से पहले किसी से नहीं मिलता। सेठ से मिलने से कबल वो अपना लाहेमल तय कर लेता तो अच्छा था। फिर उसे रामू की सरबराही में मज्जू की तलाश में जाने वालों की भी फिक्र थी और वो जानना चाहता था कि उस मामले का क्या हुआ, इसलिए भी अड्डे जाना जरूरी था। अड्डे पहुंचती सबसे पहले उसका सामना गोलू से हुआ। वो दरवाजे के बाहर ही मौजूद था और लगता था कि बड़ी बेकरारी से उसका इंतजार कर रहा है। किधर चले गए थे बाबा? सुबह आंख खुली तो ना तुम थे ना फारूक भाई। पूछा तो कोई कुछ बताता ही नहीं था, बस यही बोलते थे कि काम से गए हैं। तुम काहे को परेशान होता रहे? तेरे को पता नहीं कि अपने धंधे का? अपने लिए रात दिन सब बराबर है, पर कहीं भी जाएंगे तो लौट कर तो इधर ही आएंगे ना। फारूक भाई किधर है? वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? वो कहीं फंसा हुआ है, शाम तक लौट आएगा। तू बता, तूने नाश्ता कर लिया? तुम्हारे और भाई के बिना कैसे करता? चल फिर जा सज्जू से बोल के अच्छा सा नाश्ता तैयार करे, फिर सब मिलकर खाएंगे। पर फारूक भाई, अपन बोला ना कि वो शाम तक आ जाएगा। इस बार गोलू ने मजीद बहस ना की और वहां से हट गया। उससे बात करते हुए रब्बन उस मखसूस कमरे में पहुंच चुका था जहां बैठकर वो अट्टे के मामला निपटाया करता था। उस कमरे में तन्हा रामूस का मुंतजिर था। उसके चेहरे पर छाई मायूसी से जाहिर था कि वो अपने मकसद में नाकाम लौटा है। क्या हुआ रे? चिड़िया उड़ गई दादा। उधर मकान पर सिर्फ विक्रम की रखेल थी। उसने माना कि मज्जू बहुत दिनों से उसका रह रहा था,
और अचानक ही भाग लिया। असल में उसकी किस्मत एक बार फिर उसका साथ दे गई। अपने बंदों ने जिस टाइम विक्रम पर हाथ डाला, ठीक उसी समय चंदाबाई का नौकर मिट्टी का तेल लेने जाने के लिए मकान से निकला था। उसने देख लिया कि विक्रम को कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। मारे डर के उसने शोर तो नहीं मचाया, पर उल्टे कदमों वापस मकान पर पहुंचा और विक्रम की रखेल को सारा माजरा सुना दिया। उसने मज्जू को बोल दिया। मज्जू ने नौकर से पूछताछ की कि कैसे हुलियों के लोग थे, उनके पास हथियार कौन कौन से थे, वगैरह वगैरह, और समझ गया कि अड्डे वालों ने विक्रम पर हाथ डाला है। उसने फौरन ही वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। फीका भी वहीं उसके साथ था। दोनों फौरन ही वहां से रफू चक्कर हो गए। समझ गए होंगे ना साले कि इधर वालों के हाथ लगने के बाद विक्रम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकेगा और सारा अगला पिछला उगल देगा, इसलिए जान बचाकर भाग निकला हरामजादे। बस इतना ही, या कुछ और भी कहने का है तुझे? एक और बुरी खबर है दादा। उधर विक्रम को जिस ठिकाने पर रखा था वहां से आदमी आया था। बताया कि विक्रम की वजह से उधर बड़ी गड़बड़ हो गई है। साला सख्त जख्मी और बेहाल होने का मकर करता पड़ा था। अपन के वहां से निकलने की घंटा बर्बादी ऐसे जोर जोर से आवाजें निकालने लगा जैसे बहुत तकलीफ में हो और सांस लेने में उसे मुश्किल हो रही हो। उधर वालों ने सोचा कि कहीं मर आ ना जाए, इसलिए उसके हाथ पैर खोलकर मालिश करने लगे। उसको पानी भी पिलाया। साला थोड़ी देर मकर करके उनका ध्यान बटाता रहा, फिर अचानक हाथ मारकर एक का चाकू खींच लिया। चाकू हाथ में आते उसकी सारी अदाकारी खत्म हो गई और उन लोगों को धमकाने लगा कि उसे वहां से जाने दे। वैसे कैसे जाने देते, बस उनके बीच ठन गई। विक्रम पुलिस वाला था, चाकू चलाना क्या जाने। उसका नाड़ीपन उसकी अपनी जान ले बैठा। हाथापाई में ऐसा उलट कर गिरा कि चाकू वाला हाथ बदन के नीचे आ गया और चाकू पूरे जोर से उसके सीने में खप गया। लम्हों में तड़प तड़प कर खत्म हो गया साला। अब उसकी लाश उधर ठिकाने पर पड़ी है और आदमी तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं कि तुम क्या हुक्म देते हो। रब्बन के माथे पर एक बल पड़ गया, लेकिन उसने किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार न किया और पल भर की खामोशी के बाद बोला, जो हुआ सो हुआ, बल्कि अच्छा ही हुआ। अपन उस नमक हराम को जिंदा छोड़ते भी ना तो वो अपने लिए मुसीबत बनता। अब खाली उसकी लाश ठिकाने लगाने का ही कष्ट करना पड़ेगा। वो जो आया बैठा है उससे बोल कि रात तक का इंतजार करे, फिर रात के अंधेरे में कितनी भी ले जाकर लाश को फेंक दे। पुलिस को लाश मिलेगी तो खुद ही क्रियाक्रम के लिए उसके घर वालों के हवाले कर देगी। रबनवाज से रब्बन तक का सफर तय करते हुए उसने इतना कुछ सहा था कि वक्त पड़ने पर सफाकी का मुजाहरा भी कर बैठता था। इस वक्त वैसे ही फारूक की वजह से उसके दिलो दिमाग में भौचाल आया हुआ था, सो विक्रम के लिए बड़ी बेदर्दी से अपना फैसला सुना डाला।